Now the next question is question number 9. This question you do it like question number 7. Question है ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at the point O. Then what you have to show that AO upon BO is equal to CO upon DO. That we have to prove. So it is again a rider and we have to sketch the diagram. So let's solve the question. Now you can see here. Wait. Question number 9. I have drawn the diagram ABCD is the trapezium and AB is parallel to CD. Now what I have done extra work here. Since I have to take the ratio of AO and AO, BO and OC and OD. So for that I need to put some condition here. So what I will do here, I have constructed EF, that is EF passing through O is parallel to CD. So write down here that drawing EF passing through the point O such that EF is parallel to CD. You can see clearly EF is parallel to CD. Now we have two triangles here. The first one is triangle ADC, where I can get the ratio of AE and ED and other point. So I will write now considering triangle ADC, and before going to apply the ratio of the sides, we have to write the condition of proportionality here. I will write EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. So take the ratio now. It is AE upon ED. See I have written AE upon ED is equal to AO upon OC. Why I am writing like this? Because it is basic proportionality theorem, or simply you can write theorem 6.1 and give it equation number 1. Clear? Now one more triangle we have to select. We are going to select ABD. Now what is the need of selecting ABD? Here in ABD you can write EO is parallel to AB. Clear? See, in the first condition ADC, we just come to know that, that EO is parallel to DC, and now in this condition if I am selecting ABD, I can write clearly EO is parallel to AB. So by this I will get a common ratio of A upon ED. So I will write here ED upon AE. I am writing ED upon AE is equal to OD upon OB. Clear? I have written here ED upon A is equal to OD upon OB. Or if I will take inverse of it both sides, I will write A upon ED is equal to OB will go in numerator and OD will come in denominator. It is what theorem 6.1, and this is our condition number 2. So doing that we got A upon ED. You can see clearly here A upon ED and A upon ED as the common ratio in both the conditions. So I will write that this A upon OC and B upon OD will become equal proportion. So A upon OC is equal to B upon OD. So applying the law of proportionality, I will write AO upon BO is equal to OC upon OD. You can see here AO upon BO is equal to OC upon OD, and it is our what requirement of the question. Clear? So this is what question number 9. Once again you see all the question. Everything is given here. Okay. So let's move to the next question. Question number 10. Now it is the inverse of question number 9. What is question number 10? Asked to us that the diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Now here it is the converse of BPT. Clearly you can see that the ratio is given. What you have to prove that? You have to prove that ABCD is a trapezium. Clear? So when you sketch the diagram, you have to take the sequence of this ratio to prove ABCD is a trapezium. So let's move towards the diagram now. This is our diagram.
We can see clearly A, B, C, D. Okay. Now it is not said that ABCD is a trapezium. So what I will do, I will draw the diagonals, and O is the intersecting point of the diagonal. I will do a construction, that is constructing a line OE parallel to AB. OE parallel to AB. Clear? So using what? Basic proportionality theorem. What we can obtain that? AE upon ED. You can see AE upon ED is equal to BO upon OD. First, you can write here theorem 6.1. This is what you need to do. इतना ही आपको करना है, बाकी का काम हो गया. Why? Because it is given that AO upon OC, आप देख सकते हो, AO upon OC is given as equal to OB upon OD. ये जो है ये गिवन है, तो फ़ायदा क्या हुआ? OB upon OD और OB upon OD आपका कॉमन रेशियो निकल गया. तो हम इसके बेस पर क्या लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC. चलो डायग्राम में देखते हैं. AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC. अगर एक रेशियो आ गया तो हम बोल सकते हैं कि O इज़ पैरेलल टू व्हाट? हम बोल सकते हैं O इज़ पैरेलल टू DC. O इज़ पैरेलल टू DC है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि OE पे किसके पैरेलल होगा? AB के. तो अगर ये सेगमेंट इसके पैरेलल है और यही सेगमेंट इसके भी पैरेलल है, तो व्हाट अबाउट AB एंड CD? वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. और ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है कि वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, देन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? ट्रेपेजियम. तो हम बोल देंगे हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम. देखा कितना आसान है. तो इल्टन से मैंने आपको 6.2 करवाया. जो भी क्वेश्चन थे थोड़े अलग से थे, उनको मैंने सॉल्व कर दिए, और जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है. क्लियर? तो यहाँ तक हमारा 6.2 ख़त्म हो जाता है बच्चों. अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, क्राइटेरिया पर जाएंगे. अब कल से मैं आपको डेली जो है नोट्स भेजूँगा, बिकॉज हमें सिलेबस भी चलाना है. एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना. चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 15 आपका कौन सा? प्रोबेबिलिटी, और इसको भी साथ में करते रहना. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज़ व्हाट? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. ये थोड़ा सा आपने 9th में भी किया है पीछे की क्लास में. तो हम अगर पहली क्राइटेरिया की बात करें, अभी क्राइटेरिया की ज़रूरत क्यों है? अभी तक हमने क्या किया था कि हमने रेशियो और प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पर ट्राइंगल में अपने सारे ऑपरेशंस किए थे. ओके. 6.1 के बेस पे साइड को पैरेलल करने की कोशिश की थी, या साइड के पैरेलल होने के बेस पे हमने ट्राइंगल के रेशियो को इक्वल किया था. तो हमने जो भी यूज किया 6.1, 6.2 को अल्टरनेटली यूज किया. क्लियर? फिर हमने वैल्यू भी फाइंड की और एक बढ़िया सा थियरम भी किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम. नाउ अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो अब हमें क्या करना है? ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है, ट्राइंगल से एंगल या साइड को आइडेंटिफाई करना है, उनकी प्रोपोर्शनैलिटी को खुद से चेक करना है, और ये बताना है कि हमारे पास जो भी गिवन क्राइटेरिया है, लीगल क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है. तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल 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 और ए क्राइटेरिया. एंगल 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 और बोल रहे हैं ए क्राइटेरिया. थ्योरम 6.3 दिया है, बहुत बढ़िया थ्योरम है, तुम जरा घर पे ट्राई करना. उसी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे सपोज़ हमारे पास दो ट्राइंगल है. पहला ट्राइंगल है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सिमिलरिटी की कंडीशन है बच्चों, तो ध्यान रखना दोनों ट्राइंगल के लेंथ में थोड़ा सा चेंज आपको बताना पड़ेगा कंपलसरी. ये हो गया
ई एफ। ओके, अगर बात करें एंगल एंगल सिमिलैरिटी की, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के लिए अगर करस्पॉन्डेंसी हम लेंगे तो हम ले सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, हम बोल सकते हैं ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये कंडीशन फॉलोज है तो ये हो गया एंगल 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 क्राइटेरिया। अभी एक दूसरा सा मैंने लिखा हुआ है एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है। अब ट्रिपल ए और डबल ए, यहाँ पर मैं ट्रिपल ए की बात कर रहा हूँ या डबल ए की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल, जस्ट इमेजिन कि अगर ए 50 है, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर जैसे 50 लिख दिया और मैंने डी को 50 कर दिया, इसको बी को मैंने कर दिया 70 और सी ई को कर दिया 70। तो सी कितना होना चाहिए आपको तो पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 180 माइनस 50 प्लस 70 120, तो ये आ गया 60। ठीक है, तो ये यहाँ अगर 60 आता है तो यहाँ पर एफ भी कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप प्लस कर दो, 180 माइनस 120, ये भी कितना हो गया 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और एफ ऑटोमेटिकली भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो ऑलरेडी हैं। तो तीसरी वैल्यू भी अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी पर जाते हो तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ यूजिंग एंगल एंगल क्राइटेरिया, अगर हम ट्रिपल ए नहीं यूज करते तो हम ए से भी जो है एंगल को क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कम से कम हमें दो पर्टिकुलर लीगल रीजन मिल जाए एंगल एंगल इक्वल होने के दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अब चलो इसकी बात करते हैं। जैसे अगर मैं यही ए करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। क्या ड्रॉ कर लिया, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, इससे हमें क्या पता चलेगा, मैंने जैसे यहाँ लिख दिया पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। मैं आपको नहीं इस कंडीशन की बात बता रहा हूँ। अब जस्ट इमेजिन कि इसको आप साइड में रखो, अगर मुझे पी क्यू पैरेलल टू ई एफ ड्रॉ करने पर क्या होगा कि मेरे पास दो ट्रायंगल मिलेंगे, ट्रायंगल डी पी क्यू, आप देख सकते हो डी पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा डी ई एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ। ओके, दो ट्रायंगल मिल गए। अभी जब तक पी क्यू नहीं था हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ था, बट हमारे पास प्रूव करने के लिए दो रीजन आ गया। हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ। ध्यान से देखना, और मैंने यहाँ पर बताया पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ। अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है तो पी और ई का आपस में क्या रिलेशन होगा, ये ई है, अच्छे से बना लेते हैं। पी और ई का आपस में रिलेशन होगा, हम बोल सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, बोल सकते हैं ना, इट इज़ व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल। एफ टाइप बनता है, आप जानते हो। एक पहली रीजन मुझे मिल गई, वाई, बिकॉज पी क्यू इज़ पैरेलल टू ई एफ, और हम बोल सकते हैं डी इज़ द ट्रांसवर्सल, डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। इस तरफ आते हैं तो हम लिखेंगे एंगल क्यू इज़ इक्वल टू एंगल एफ, होगा कि नहीं, ये भी करस्पॉन्डिंग बन रहा है, ये क्यू और ये एफ, ये दोनों भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन आप दे सकते हो। ओके, दो रीजन हमें मिल गए सेटिस्फाई करने के लिए। अब देखो, अगर तीसरी कंडीशन पर जाएंगे तो फॉर ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ, आपका जो डी है कॉमन एंगल है, डी क्या है, कॉमन एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा कि ए क्यू, सो इफ़ डी इज इक्वल टू डी, तो हम बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये डी है, हाँ, डी एफ बाय ए। हो गया ना प्रूफ। कौन सा, डी पी क्यू और डी ई एफ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉमन एंगल। तो अब जब ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो क्या आपका ए और पी, बी और पी और सी और क्यू भी इक्वल होंगे, बिकॉज अगर बी इक्वल टू ई है, आपने यहाँ पर लिखा है बी इक्वल टू
ई, और आपका ई किसके इक्वल टू है, पी के। ई किसके इक्वल टू है, पी के। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज ऑल्सो इक्वल टू पी। अब आपने बोला सी इज इक्वल टू एफ, सी इज इक्वल टू एफ, और एफ किसके इक्वल टू है, क्यू के। तो सी और क्यू भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो मतलब ये जो आपका ए बी सी है और ये जो आपका डी पी क्यू है, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो सकता है। और क्राइटेरिया कौन सी होगी, एंगल एंगल। क्लियर। और एक कॉमन एंगल है, तो जब ये दो एंगल आपस में सिमिलर हैं तो बचा हुआ ए और डी भी आपस में सिमिलर हो ही जाएगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल, मतलब किसी दो ट्रायंगल के एटलीस्ट दो एंगल क्या हो जाने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, एंगल एंगल। इसको अभी ध्यान से देखना, बहुत अच्छी क्राइटेरिया है, आपको मज़ा भी आएगा। ओके। फिर अगर हम सेकंड बात करें, आपके बुक में जो सेकंड क्राइटेरिया है, और ये जो है आपका कौन सा थ्योरम है मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 131 पर थ्योरम 6.3 आप इसको लिख लेना। ओके, 6.3 के बेस पर है, आप लिख लेना, एक बार आपको आइडिया आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं एक और क्राइटेरिया की, दैट इज़ कॉल्ड है साइड साइड साइड। ये बहुत ही सिंपल है। साइड 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 के लिए आपको क्या करना है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल लाइक ए बी सी और दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, हम लिखते थे ए बी 5 है, ये पी क्यू 5 हो जाए, बी सी 6 है, क्यू आर 6 हो जाए, ए सी 7 है, पी आर 7 हो जाए। तो हम फटाफट साइड साइड करके भाग जाते थे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर हमको करना है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो साइड साइड की जो कंडीशन है हमारी, वहाँ पर क्या होगा, साइड साइड की कंडीशन के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए बी अपॉन पी क्यू। हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू के लिए भी अगर हम साइड साइड बता रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि ए बी अगर 3 है तो पी क्यू कितना होना चाहिए, 6। तो इससे हमें 3/6 मिला, मतलब 1/2। अभी हमने नहीं बोला कि ये साइड से है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमें बताना पड़ेगा क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। साइड भी लग सकता है, एंगल भी लग सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ जैसे बी सी 4 है और क्यू आर को मैंने कर दिया 8, तो मैं लिखूँगा बी सी अपॉन क्यू आर, ये हो गया 4/8, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब थर्ड साइड है ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर, इसको मैंने ले लिया 5 और इसको ले लिया 10, तो ये हो गया 5/10, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि सिंस ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये रेशियो सिमिलर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी ये जो है सिमिलर टू होगा ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्राइटेरिया हम क्या लगाएंगे, साइड साइड साइड। क्लियर। तो इस तरह से ये दूसरी क्राइटेरिया, मतलब अब हमें क्या करना है, पहले हमें क्वेश्चन की गिवन को पकड़ना होगा, उसके बेस पर चाहे एंगल क्राइटेरिया वेरीफाई हो रही है या साइड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, इन दोनों में से किसी एक को देखकर कंडीशन बताना है और उसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। मतलब अब हम जा रहे हैं टू प्रूव में, क्या, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको साइड की क्राइटेरिया बताकर एक और थ्योरम बताने जाऊंगा। ओके।